mechanical properties of solids, basically talking about stress, strain, and Young's modulus. So होपफुली तुम लोगों को यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन फॉर्मूला सारे तुम लोगों को याद है और कैसे क्या अप्लाई करना होता है. So I am going to move on to my first question. That is going to be this: a rod of length L at room temperature and uniform area of cross section A is made of a metal having coefficient of linear expansion alpha Celsius inverse. It is observed that an external compressive force F is applied on each of its ends, prevents any change in the length of the rod when its temperature rises by delta T Kelvin. Young's modulus Y for this metal is ah, Ishika says 1, Yash says 1, Srijan says 1. So I've got 3 answers, so I'm going to move on with my solution. So obviously Young's modulus is stress by strain, itna sabko pata hai. Devasmita says 1. Stress is given by F by A, force by area, strain is, और यहाँ पे ये A नहीं होना चाहिए, यहाँ पे A नहीं होगा, तो हटा देते. So stress by strain F by A, delta L by L, using coefficient of linear expansion. Obviously delta L by L is also equal to coefficient of linear expansion into the change of temperature. ये सबको को एक्सप्लेन करने की होपफुली मुझे कोई जरूरत है नहीं, तो सिंपली जाके इसे पुट कर देना इंस्टेड ऑफ डेल्टा एल बाय एल और तुम्हारा आंसर आ जाएगा. एक्सक्यूज मी. होपफुली इसमें मुझे और कुछ समझाने की कुछ जरूरत है नहीं. Simply Young's modulus stress by strain delta L by L can also be written as coefficient of linear expansion into change in temperature. ये ले जाके यहाँ पे डाल दोगे, आंसर आ जाएगा. Right. Moving on to my next question. A load of mass m kg is suspended from a steel wire of length 2 meters and radius 1 millimeter in Searle's apparatus experiment. The increase in length produced in the wire is 4 millimeters. Now load is fully immersed in a liquid of relative density 2. Relative density of material of load is 8. The new value of increase in length of the steel wire is. तो पहले ये पूरा सेटअप वैक्यूम में था, उसके बाद ले जाके एक लिक्विड में एपरेटर्स को, इस सेटअप को इमर्स कर दिया गया. लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, मटेरियल का भी रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है. The one says 3 millimeters. The one is saying option A होना चाहिए. Any more answers? The people who are solving can keep solving.
People, please mute their audios. Yes. Who's right? So initially vacuum में था. I've got one more answer. Mehak says option one. Two people are saying option one. So initially ये vacuum में था, आसपास कुछ नहीं था. So obviously the restoring force is being provided by. So F by A is equal to Y into delta L by L. This is the simply a Young's modulus since ratio of densities is 4:1. So F by A is equal to Y delta L by L. Delta L is obviously directly proportional to the force. In the first case, T is equal to mg. In the first case, T is equal to mg, obviously in vacuum. दोनों balance out कर रहे हैं. So the restoring force that was acting was obviously tension. And in the second case, जब मैंने इसको liquid में मैंने इसको जब liquid में डुबा दिया, obviously अब एक force of buoyancy आ जाएगा, which will obviously act upwards. So in this case, tension will be mg minus fb, relative densities of the object and of the liquid दिए हुए हैं. So force of buoyancy rho bg, density of liquid into density into volume into g. That will be my buoyant force. जो मुझे ये आ जाएगा. In second case ये मेरा tension हो गया. तो फर्स्ट केस में टेंशन mg है, सेकंड केस में टेंशन ये है. आई थिंक यू एंड अप गेटिंग 3/4 mg. तो यहाँ तक हमने अभी तक सिर्फ फोर्स बैलेंस फोर्स. तो एक्चुअली ये T डैश होना चाहिए. आई विल राइट दिस एज T डैश. So from equation 1, obviously change in length is directly proportional to the restoring force. In this case, the restoring force is the tension. So दोनों केस में हमें टेंशन पता है. Simply रेशियो लेना है. डेल्टा एल ऑलरेडी दिया हुआ है 4 millimeters. And you simply end up getting the final answer as 3 millimeters. Can you show the question? Yeah. This is the question. For people who haven't seen the question, yes, अब ठीक है. Okay. Wait a minute. I think I missed a few comments. Since ratio of density is 4:1, shouldn't the liquid account for 1/4 of the force? So without trying to look at it, yes, that is right. The liquid should indeed compensate for 1/4 of the weight. You are right, Ritabar. तो अगर लिक्विड के हिसाब से भी देखोगे तो तुम्हारा आंसर 3/4 आ जाएगा. रेशियो तुम्हारा 3/4 आ जाएगा टेंशंस का, दोनों मतलब रिस्टोरिंग फोर्स का. तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3 millimeters. Is there any other question or comment anyone wants to make? So what Ritaban is saying is that sir ratio दिया हुआ है 4:1, obviously relative density दिया हुआ है liquid और इसका. तो कह रहा है कि the liquid should compensate for 1/4 of the weight as buoyant force.
तो सर हम टेंशन बिना कैलकुलेट किए ही बोल सकते हैं कि T-T 3/4 होना चाहिए. So that is what Ritabun's comment is, which is a very good point. It's a very good point. तो ये इसको अगर ये नहीं समझ में आता that is fine, but this is a very good point that has been made. Is there anything else anyone wants to comment, say, before I move on? Right, moving on. A steel wire having a radius of 2 millimeters, carrying a load, this is hanging from a ceiling. G दिया हुआ है. What will be the tensile stress that will be developed in the wire? What will be the tensile stress that will be developed in the wire? Already answer आने लगे हैं. Max says option 3. 3.1 into 10 to the power 6 Newton per meter square. Yash says 3. So I've got two answers already. Ishika says 3, Aritra says 3. So I'm guessing the answer is 3. So radius 2 millimeters, load is 4 kg, G 3.1 pi दिया हुआ है. Tensile stress क्या होगा? Simply radius of wire दिया हुआ है, mass of load दिया हुआ है. Stress is simply going to be F by A. Force by Siddharth says 3. Force by area, so force it will be जो restoring force होगा वो mg के बराबर होगा. So force F is equal to mg. A is obviously equal to pi r square. G दिया हुआ I think 3.1 pi दिया हुआ है तो pi pi कट जाएगा. Finally end up to 3.1 to 10 to the power 6 Newton per meter square. और यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस पूछा गया है. ऑब्वियसली स्ट्रेस 3 तरीके के होते हैं. वन इज टेंसाइल, सेकंड वन इज shearing stress, third one is hydraulic stress. So we are being asked about tensile stress. Right. Hopefully इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की कुछ है नहीं. So I'm just going to move on. Question number 4. A boy's catapult is made up of a rubber cord which is 42 centimeters long with 6 millimeters diameter of cross section and of negligible mass. The boy keeps a stone weighing 0.02 kg on it and stretches the cord by 20 centimeters by applying a constant force. When released, the stone flies off with a velocity of 20 meter per second inverse. The Young's modulus of obviously area of cross section में जो बदलाव आ रहा है, we are going to ignore that. The Young's modulus of rubber is closest to
Any answers? I've got my first answer. Aditya says option 1 होगा. So people who are solving can keep solving. Solve करते रहना और फिर लास्ट में आंसर कंपेयर कर लेना. So what I am going to do here is I'm going to use the conservation of mechanical energy. So when a catapult is stretched up to length n, then the energy is stored in ये PE होगा. This will be delta PE. जब stretch किया जाता है, then the energy stored in it is equal to the potential energy. और ये जो potential energy है वो मेरा जो stone है, जो object है, this potential energy gets converted into the kinetic energy of the object. So if you remember this is the expression for the potential energy of a stretched wire or object in this case. Stretched मतलब in the sense कि delta कुछ change आ रहा है delta L. Someone has just joined us, Ruby. Welcome. So hopefully ये सबको याद होगा. This is the potential energy stored in a wire bolo rubber जो भी. When it is stretched by when there is a change in length equal to delta L. When there is a stretch in it equal to delta L. So just equate. So ये हो गया potential energy of the rubber cord when it is stretched. This is converted into the kinetic energy of my stone. दोनों को equate कर दिया. ये by the way ये capital Y होगा. ये Y यहाँ पे Young's modulus है. M दिया हुआ है, V दिया हुआ है, L दिया हुआ है, डेल्टा L भी दिया हुआ है. सारे वैल्यू सब दिए हुए हैं. You will end up with 2.3 into 10 to the power 6. Please show the options. Please show the options. So I have to find the Young's modulus of rubber is closest to basically order. As you can see, the चारों के order अलग-अलग है. So I just have to compare the order. सिर्फ order compare करना है. So I get 2.3 into 10 to the power 6. Order is 10 to the power 6. So 0.5 into stress into strain is also potential energy. 0.5 into stress into strain is potential energy per unit volume. Mahek, half into stress into strain potential energy per unit volume देता है. हाँ, इसीलिए तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा था. Half into stress into strain into volume is potential energy. तुमने यहाँ पे वॉल्यूम हटा दिया है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये पोटेंशियल एनर्जी बाय वॉल्यूम. So I hope that clears your. इसीलिए तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा था. So potential energy is half into stress into strain into volume, that is area into length. और उसमें से थोड़ा सब्स्टिट्यूट वगैरह करेगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. और सपोज अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो भी रहा हो, सपोज अगर तुम्हें, and obviously 0.5 into stress into strain doesn't have the right dimension, it is joules per meter cube. इसका जो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन का जो तुम्हारा SI यूनिट होगा दैट विल बी जूल्स पर मीटर क्यूब. वॉल्यूम पर जो भी एनर्जी डेंसिटी बोल सकते हो. यस, ये हमेशा वेरीफाई किया जा सकता है. दैट इज फाइन. एंड ऑब्वियसली अगर ये फॉर्मूला भूल जाओ
अगर ये फॉर्मूला तुम भूल जाते हो तो इंटीग्रेशन हमेशा किया जा सकता है, इंटीग्रेशन हमेशा काम आता है। तो ऑब्वियसली एफ इज इक्वल टू, एफ क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस ए, अगर मैं चेंज इन लेंथ को एल लिख देता हूँ, जो भी छोटा जो स्ट्रेच हुआ, बाय कैपिटल एल, एंड ऑब्वियसली वर्क डन विल बी दिस इनटू डीएल। तो अगर तुम इसको इंटीग्रेट कर देते हो तो यू विल एंड अप विद दिस एक्सप्रेशन। ऑब्वियसली दिस इज द, ये अब एफ नहीं होगा, अब मैंने इसको डेल्टा एल से, तो ये मेरा वर्क डन होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ माय स्ट्रेच। अगर इन केस तुम भूल, अगर तुम्हें कहीं कंफ्यूजन होता है तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डीएल, where L is change in length and DL is small change in the change in length itself. So hopefully this is clear. Right. Moving on to my next question. Young's modulus of Young's modulus of two wires. Young's moduli of two wires A and B are in the ratio 7:4. Wire A is 2 meters long and has radius R. Wire B is 1.5 meters long and has radius 2 millimeters. If the two wires stretched by the same length for a given load, then the value of R is close to. Answers. यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है, वायर ए का 2 दिया हुआ है, वायर बी का लेंथ और रेडियस दिया हुआ है। सिंपली तुम्हें यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगाना है, दोनों में फोर्स सेम है। Yeah, didn't think about Mahek says option 3, Aditya is saying option 3, Ishika says option 3, so इसमें सिर्फ यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगाना है। दोनों केस में तुम्हारा एफ सेम है, डेल्टा एल भी सेम लेंथ दिया हुआ है, डेल्टा एल भी तुम्हारा सेम है। ऑप्शन 3, सब जवाब दे रहे हैं ऑप्शन 3। तो ऑब्वियसली डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2, तो सिंपली दोनों को इक्वेट कर दो, एफ एफ कट जाएगा, बाकी सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना, आर तुम्हारा 1.7 मिलीमीटर आ जाएगा। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। फोर्स एंड डेल्टा एल दोनों केस में सेम है, रेशियो रेशियो लेना है रेशियो ले सकते हो, इक्वेट करना है इक्वेट भी कर सकते हो। देवस्मिता says 3, very good. So I think this question is clear to everyone, इसमें कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। अब बस ये मत पूछ लेना कि ये कहाँ से आ गया। Right, moving on to my next question. In an environment, brass and steel wires of length 1 meters with areas of cross section 1 millimeter square are used. The wires are connected in series and one end of the combined wire is connected to a rigid support and the other end is subjected to elongation.
the stress required to produce a net elongation of 0.2 millimeters is, और obviously steel and brass का Young's modulus दिया हुआ है. And one more thing, guys, just want to tell you something about this chapter. For people who haven't read, उतना तुम्हारा अभी तक तुम लोगों ने ठीक से इसको रिवाइज नहीं किया या कुछ किया, इस चैप्टर में सिर्फ 2-3 फॉर्मूला हैं. एक तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला है, दूसरा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा, उसका एक आ जाता है, और तीसरा है तुम्हारा डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर. इन्हीं यही बस 3-4 फॉर्मूला है, इन्हीं के साथ खेलना होता है, और इसके सारे मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे. तो दिस इज अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर. अगर एक क्वेश्चन भी आता है, आई थिंक यू वुडंट वांट टू मिस इट. अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा है जहाँ कुछ मतलब अपर लेवल का कॉन्सेप्ट लग गया हो. एक ही फॉर्मूला है, एक या दो फॉर्मूला, हम तब से उसी पिछले इस क्वेश्चन में भी वही होगा. एक दो फॉर्मूला हम उसी के साथ खेल रहे हैं. सो पीपल हु हैवंट रिवाइज दिस चैप्टर, प्लीज गो थ्रू दिस इज वेरी वेरी स्कोरिंग. In getting, I am getting 8 into 10 to the power 6. 8 into 10 to the power 6 ऑप्शन में नहीं है. Ritaban says option 2, 4 into 10 to the power 6. तो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है. तो जब सीरीज में कनेक्टेड होता है, let sigma be the stress. Yeah, everyone has read the question. Hopefully, I'm going to move on with my Mehak says option 2, 4 into 10 to the power 6. Aditya, who was that? Aditya, you might want to check your process. देख लेते हैं, चलो इसका शायद इसमें एक छोटा सा कैच है. ब्रास एंड स्टील, एफ इस तरफ गया, लेट सिग्मा बी द स्ट्रेस. यंग्स मॉड्यूलस इज नथिंग बट y is equal to stress by strain. Strain is delta L by L. तो टोटल एलोंगेशन, बिकॉज ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो टोटल एलोंगेशन होगा दैट विल बी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2. डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2. So obviously delta L net will be sigma into 1 by y1 plus 1 by y2. Obviously L1 L2 दोनों का लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर. फाइनली जब तुम y एंड सब का आंसर लगाओगे, you get 8 into 10 to the power 6. It says answer is not matching. आंसर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. But if you use gamma net like you do in springs, I don't think यहाँ वो सब करने की कुछ जरूरत है. मैं उतना सब कुछ करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे. इससे तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए आइडियली. आइडियली इससे सिंपल है, सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों में जो एलोंगेशन होगा दैट विल बी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2. वही कॉन्सेप्ट है इसमें उतना. कैन यू सी द लास्ट बिट ऑफ द. अब ये हो सकता है कि यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो.
हाँ, अगर तुम गामा नेट यूज करते हो, जैसे महक ने कहा सर इफ यू यूज गामा नेट, तो आंसर 4 × 10⁶ आ जाना चाहिए आइडियल केस। बट द पॉइंट इज, इससे भी तो आंसर आ जाना चाहिए फिर। इसमें और इसमें दोनों में थोड़ी ना तुम्हारा डिफरेंट प्रोसेस यूज करोगे तो दो अलग अलग आंसर आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में ये थोड़ा एम्बिग्युइटी है। अनलेस यहाँ पे कैलकुलेशन gamma is coming to be 4 × 10, तो elongation part will be different। अच्छा ठीक है, मैंने कैलकुलेशन किया नहीं है। तो गामा गामा आ रहा है तुम्हारा 4 × 10, तो elongation पार्ट फिर 8 × 10⁶ होगा फिर। आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा दोनों केस में, वही मैं बोल रहा था। प्लीज एक्सप्लेन द elongation कैलकुलेशन। ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो जब टू रॉड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अब मैं इसको ऑब्वियसली इसका डेरिवेशन वगैरह तो यहाँ पे कर नहीं पाऊंगा अभी। अरित्रा सेज व्हाट इज गामा, अगर नहीं आता है अरित्रा, आई विल अर्ज यू टू गो एंड रीड अबाउट इट। तो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट, ये होता है कि जब दो मेटल ऐसे जब ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो इलेक्ट्रिसिटी में तुमने सीरीज वीरीज किया होगा, यहाँ पे भी ये सब कॉन्सेप्ट आ जाता है। आह, हमें F/A खोजना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। स्ट्रेस रिक्वायर्ड, यस स्ट्रेस स्ट्रेस खोजना है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली F/A खोजना होगा। सो जब दो मेटल रॉड सीरीज में ऐसे कनेक्टेड हो, एलोंगेशन जो होता है डेल्टा एल नेट, दैट इज सिंपली डेल्टा L1। इंडिविजुअल जो तुम्हारे एलोंगेशन होते हैं, मैं अभी इसको यहाँ पे डिराइव अनफॉर्चुनेटली इतना है नहीं कि अभी मैं इसको डिराइव कर पाऊँ। सिंपली इट विल बी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। इन दिस केस डेल्टा L1 को तुम स्टील ले लो, डेल्टा L2 को रॉड ले लो। डेल्टा एल का तुम्हें फॉर्मूला पता है? हाँ ऋतुपन, अनफॉर्चुनेटली दोनों का आंसर नहीं बदलना चाहिए। अब नेट एलोंगेशन ऐसे क्यों हो गया मैट, इसका डेरिवेशन तुम जाके देखना, यहाँ पे नहीं डिराइव करूंगा अभी ये सब। मैं स्ट्रेन की मैं किस सेइंग स्ट्रेन वो नहीं है, इसीलिए अपना गलत आया। तुम लोगों ने किया क्या है वैसे, ठीक से किया है ना? Aritra says we can use equivalent string constant method. Strain portion we got wrong, so we found equal। अच्छा तुम लोगों ने कुछ कर दिया है यहाँ पे। सर वी फाउंड इक्विवेलेंट स्प्रिंग, अच्छा उससे आंसर आ रहा है क्या? उससे क्या 4 × 10⁶ आ रहा है? ऐसा तो होना नहीं चाहिए आइडियली। प्रोसेस बदल जाने से थोड़ी ना। चेतवन सेज यस सर, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा see her, the strain is calculated, the strain you calculated is 2। मैंने यहाँ पे स्ट्रेन कैलकुलेशन 0.2 किया है। दोनों का आंसर तो नहीं बदलना चाहिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, क्योंकि एक एक मेथड यूज कर रहे हैं, तो 4 × 10⁶ आंसर इज ऑलवेज 8 × 10⁶, इवन बाय स्प्रिंग मेथड। तो ऑब्वियसली आंसर नहीं बदलना चाहिए, तो ऑब्वियसली कोई भी ऑप्शन। अच्छा मैंने डिवाइड बाय 2 नहीं किया है क्या यहाँ पे? हाँ यहाँ पे एक गलती है, यहाँ पे एल से डिवाइड नहीं हुआ है ये। यहाँ पे एक 2 भी होना चाहिए।
Finally, I think Aritra, you have found the mistake in the solution. अब आ रहा है आंसर 4 × 10⁶। यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था स्टेप में। यहाँ पे एक छोटा सा डेल 2 मिसिंग था। Stress is delta L by L into the equivalent Young's modulus. Individual rods का but elongation total has 0.2 and obviously total length is, अगर तुम total length देखोगे तो the wires are connected in series. Brass and steel wires of length 1 millimeter is, so total length 2 होगा। तो obviously यहाँ पे 2 से multiply करना भूल गया। Go to elongation calculation once. Delta L1 by delta L2. कहाँ किस लिए L2? Even I also don't understand why L is 2. Net elongation ये हो गया। इसमें होपफुली कोई इश्यू है नहीं। दिस इज द नेट elongation delta L net. Obviously stress is given by this. टोटल लेंथ अगर तुम्हारा 2 है, दोनों एक का 1 मीटर है दूसरे का टोटल, दिस इज द इक्विवेलेंट elongation दोनों का मिला के। दिस इज द इक्विवेलेंट यंग्स मॉड्यूलस। तो लेंथ लेंगे दोनों का मिला के लेंगे ना। यू आर सेइंग छोटा L इज 1। छोटा L 1 क्यों होगा? हाँ तो बिग L 1 + 1 1 + 1 2 होगा ना। Brass and steel of length 1 meter each. Exactly रितुमन। द डेल्टा एल जो हमने कैलकुलेट किया है वो टोटल रॉड के लिए कैलकुलेट किया है। अच्छा, यू मीन द एलोंगेशन डेल L1 + डेल L2। दिस इज द एलोंगेशन ऑफ 2। अब ये तुम्हें जाके पढ़ना है। महक ने भी ये सवाल पूछा था, मैं यहाँ पे डिराइव नहीं कर पाऊंगा। ये जो तुम्हारा टोटल एलोंगेशन है, आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव दिस हियर। तो अभी तुम्हें ये मान के चलना पड़ेगा कि टोटल एलोंगेशन ये होगा। ये तुम्हें अभी घर जाके तुम अपना किताब विताब खोलो, जाके पढ़ लेना खुद से। अच्छा, यस सर, आई हैव डन इट, आई हैव प्रूव्ड इट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, तो महक फाइनल आंसर तुम्हारा 4 आएगा। यहाँ पे L से डिवाइड करना ही भूल गया मैं। यहाँ पे टोटल लेंथ से डिवाइड करना भूल गया मैं, तो टोटल लेंथ तुम्हारा 4 × 10⁶ आ जाएगा। तो आई थिंक यश इज स्टिल सेइंग हम why are we dividing by 2 and not 1? यस, टोटल लेंथ 2 है दोनों का मिला के। तो ये मेरा क्वेश्चन एनवायरनमेंट ब्रास एंड स्टील। तो मैं और एक बार फाइनली समझा देता हूँ। छोटा सा मिस्टेक हो गया था लास्ट स्टेप में। इन एनवायरनमेंट ब्रास एंड स्टील वायर्स ऑफ लेंथ 1 मीटर ईच विद एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 millimeter cube are used. The wires are connected in series and one end of the combined wire is connected to a rigid support and the other end is subjected to
elongation, the stress required to produce a net elongation of 0.2 millimeters. हाँ, तो ऑब्वियसली लास्ट स्टेप में तो टोटल नेट लेंथ ही तो लिया गया है. तो फाइनली क्या होगा? ऑब्वियसली आई एम अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन. यंग्स मॉड्यूलस ये दिया हुआ है. तो टोटल एलोंगेशन सिंस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विल बी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2. ये ऑब्वियसली कुछ लोगों ने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है. यस सर. क्यों, क्या अभी भी नहीं आ रहा है क्या आंसर? तो डेल्टा L इज सिग्मा 1 बाई सिग्मा इंटू 1 बाई y1 प्लस 1 बाई y2. डेल्टा L, तो सिग्मा विल बी डेल्टा L. मैं एक बार इसको, अच्छा मैं एक बार खुद ही कैलकुलेशन कर लेता हूँ, छोड़ो. इतना सब कुछ करके तो फायदा है नहीं. तब से देखे जा रहा हूँ. तो सिग्मा दिया हुआ है, डेल्टा L इज तो डेल्टा L विल बी इज इक्वल टू, तो डेल्टा L आ जाएगा मेरा सिग्मा बाई डेल्टा L बाई डेल्टा L. L बाई, एक मिनट, आई एम जस्ट, अब मैं, छोड़ो अब तुम लोग, जस्ट एक मिनट चैट सेक्शन पे रुक जाओ. मैं इसको खुद ही देख लेता हूँ. जस्ट गिव मी अ मिनट. तो सिग्मा कोएफिशिएंट दिया हुआ है और मुझे खोजना है नेट स्ट्रेस. हम्म. Delta L is Young's modulus. Delta L by L will be Young's modulus. Sigma L net is sigma by 1 by y naught. So यहाँ पे ये L नहीं होगा क्या? तो यू आर टेलिंग मी यहाँ पे एक L नहीं होना चाहिए. अगर हम लोग नीचे L डाल देते हैं, अगर हम लोग नीचे L डाल देते हैं तो आंसर 4 आ जाएगा. और अगर टोटल लेंथ हम नहीं लेते हैं तो आंसर 8 आ रहा है. This is my equivalent Young's modulus. This is my equivalent Young's modulus. Answer 80 आ रहा है. So there is a little bit of ambiguity in this question. ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, तो सही करके फिर से डालना पड़ेगा. क्वेश्चन में थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है. इन द मीन टाइम वी विल जस्ट मूव ऑन. मुझे इस क्वेश्चन को एक बार देखना पड़ेगा. आंसर 80 आ रहा है. Anyways, I'm going to move on to my next question. इस एक क्वेश्चन पे इतना टाइम वेस्ट हो गया. The elastic limit of brass is 379 megapascals. What should be the minimum diameter of a brass rod if it is to support a 400 Newton load without exceeding its elastic limit?
मेरा भी पिछले वाले का आंसर 8 आ रहा है, और मैं कुछ और ट्राई करके देखने वाला हूँ. Anyways, for now, let's keep it at 8 into 10 to the power 6. I'm just going to redo थोड़ा उधर इधर करके देखता हूँ कि और कुछ 4 आता है क्या. So this is my next question. The elastic limit of brass is 379 megapascals. What should be the minimum diameter of a brass rod if it is to support a 400 Newton load without exceeding its elastic limit? Aditya says 2, Mahek says 2, Siddharth says 2. So hopefully all of you सबका आंसर आ गया होगा अभी तक. So stress is given as force into area. तो ऑलरेडी फोर्स दिया हुआ है 400, इलास्टिक लिमिट भी दिया हुआ है ब्रास का 379 मेगा पास्कल्स. तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा मेरा स्ट्रेस, दैट शुड बी इक्वल टू 379 into 10 to the power 6. तो ऑब्वियसली मेरा आंसर आ जाएगा 1.15 millimeters, which is obviously option which is close to option 2. आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत हुई होगी कुछ करने में. 1.157, 1 point, ठीक है, 1.16, 1.15. I'm just going to move on from this. At 40 degrees Celsius, a brass wire of 1 millimeters radius is hung from the ceiling. A small mass M is hung from the free end of the wire. When the wire is cooled down from 40 degrees to 20 degrees, it regains its original length of 0.2 meters. The value of M is close to. ब्रास वायर दिया हुआ है 40 डिग्रीज पे. जब 40 डिग्रीज पे इसका रेडियस 1 millimeter है. A small mass is hung from the free end of the wire. When the wire is cooled from 40 degrees to 20 degrees, it regains its original length of 0.2 meters. The value of M is close to. तो जब हम मास हैंग करें ऑब्वियसली ब्रास वायर कुछ स्ट्रेच होगा, पर जब हम इसको 40 to 20, when the wire is cooled from 40 to 20 degrees, it regains its original length. So even though opposite, change due to temperature is equal to the change due to the hung mass. Answers in the chat section. Got my first answer. Yash says option 3, 1.5 kilogram. टेम्परेचर की वजह से जितना चेंज हो रहा है मास की वजह से ही, विदाउट द टेम्परेचर मास की वजह से भी उतना ही चेंज हो रहा है.
Yash says, I made a mistake. I am getting around 6.5, so closest is 9. You are getting 6.5, so closest is 9. That is a very weird way of solving, but ठीक है. The value of m is close to, पर इतना दूर तो नहीं आना चाहिए कि ऑप्शन 9 है और तुम्हारा 6.5 आ जाए. ठीक है, देख लेते हैं. I am getting 2 pi, so you are getting 6 point something. Yeah, 2 pi is 6 point. So I am also getting 6.4, so everyone is getting around 6.5. चलो देख लेते हैं इसमें किया क्या है. तो डेल्टा टेम्प इज इक्वल टू डेल्टा लोड इज, ये ऑब्वियसली ये है पाई आर स्क्वायर 10⁻³ होल स्क्वायर. यहाँ पे एक अल्फा होना चाहिए. अल्फा नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, ओके. तो सिंपली एक्सक्यूज मी, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है. अल्फा ऑलरेडी दिया हुआ है 10⁻, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 10⁻7 और यंग्स मॉड्यूलस 10⁻11. तो फाइनली तुम्हारा आंसर आ जाएगा 6.28 2 पाई, which is close to option A. तो तुम लोग का जो आंसर है वो ठीक है. It is closest to option A. Shouldn't this be a bonus question? हाँ, कभी कभी बोनस क्वेश्चन मिल जाता है, अच्छी बात है. और अब तुम बोलोगे सिंस नन ऑफ द ऑप्शंस मैच, अब वो आर्ग्यूमेंट दे देगा कि देखो यहाँ पे तो मैंने द वैल्यू ऑफ m इज क्लोज टू लिखा हुआ था. हाँ वही है. तो ऑन 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 क्या, ऑन मैटर ऑफ टेक्निकलिटी महक हम कुछ नहीं कर सकते. हाँ एक्चुअली मुझे भी जब जब आदित्य ने 6.5 आंसर, तो मुझे भी यही लगा ये कैसे हो गया, पर फॉर्चून पर क्या कर सकते हैं. एनीवेज ठीक है, मूविंग ऑन. एज लॉन्ग एवरीवन हैज गॉट समथिंग क्लोज टू 0.6.34 के आसपास कुछ मिला होगा, डिपेंडिंग ऑन योर कैलकुलेशंस. टिल देन ठीक है. ठीक है ये, होपफुली इवन दो द लिटिल goof up, सिंपली यहाँ पे ये यूज किया गया है कि जो डेल्टा एल है, जो डेल्टा एल है दैट विल बी इक्वल टू alpha times, which is the coefficient of linear expansion, into delta t, which is again equal to fl by a by to l into a by y. तो ये एक्सप्रेशन यूज किया गया है to find the value of f. Alpha into delta t is equal to fl by ay. आंसर डाल देना है, you will end up getting which is around 6.3. Right. Moving on. Question number 9. A uniform cylindrical rod of length L and radius R is made from a material whose Young's modulus is Y. When this rod is heated by temperature T and simultaneously subjected to a net longitudinal compressional force F, its length remains unchanged. The coefficient of volume expansion of the material of the rod is.
Aritra says 3. Option 3. 3f by pi r square yt. Aditya also says option 3. अच्छा मुझे this is to all the participants in the chat. Mehak Agarwal has raised her hand. Yes, Mehak. Yes, this is a people who are replying. Some people are participating. Other people are not replying to anything. So I will need more participation. Answer गलत भी हो अगर नहीं आ रहा हो प्लीज से जब तक तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे मुझे नहीं पता चलेगा तुम कहाँ वीक हो कहाँ नहीं हो आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू अगर किसी का so I just want to ask to the entire all the participants 19 of you how many of you are how many of you are not adept with this chapter या तुम्हें जब मैं प्रॉब्लम्स कर रहा हूँ तुम्हें तुम्हें कहीं कहीं प्रॉब्लम हो रहा है फॉर्मूला समझने में या कुछ समझने में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में तुम कहीं कहीं फॉर्मूलाज में तुम थोड़ा उधर इधर हो जा रहे हो हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग सच प्रॉब्लम एंड आई विल प्लीज एक्सपेक्ट यू टू रिप्लाई जब मैं प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ हाउ मेनी ऑफ पीपल आर गेटिंग मडल्ड अप विद द फॉर्मूलाज और ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है इज वन प्रदीप से उसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है एजेंट चैटर्जी says option 3 I'm going to show you the answer obviously delta temp दिया हुआ है when this rod is heated by temperature T and simultaneously subjected to a net longitudinal force F its length remains unchanged so जो force की वजह से जो delta L आ रहा है that is countered by the temperature so delta L हम इसे हीट कर रहे हैं तो डेल्टा एल तो सॉरी टेम्परेचर उसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है जबकि फोर्स उसको एक्सपैंड करने से रोक रहा है सो दीज टू आर एक्टिंग अगेंस्ट ईच अदर सो जो नेट रिजल्ट है कि लेंथ चेंज नहीं हो रहा है तो डेल्टा टेम्प इज इक्वल टू डेल्टा फोर्स अगेन जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था आई एम सॉरी ये एल यहाँ पे नहीं होगा एल यहाँ पे नहीं होगा तो जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था अल्फा इंटू डेल्टा टी विल बी सॉरी ये टी ये एल यहाँ पे होगा जस्ट आई एम सॉरी गाइस ये एल इंडीड यहाँ पे होगा इरेजर राइट and finally you get alpha is equal to fl ay delta t सिंपली फॉर्मूला लगा देना है और तुम्हारा आंसर तुम्हें आ जाएगा एंड ऑब्वियसली कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम coefficient of volume expansion is 3 times coefficient of linear expansion so you get 3f by pi r square yt तो होपफुली इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है just a minute I'm just going to erase this here because यहाँ पे सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया है
तो पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज किया गया, बिकॉज समवन सेड दे आर गेटिंग मडल्ड अप विद द फॉर्मूलाज। तो डेल्टा एल बाय एल, तो हमारा डेल्टा एल बाय एल होता है, इट इज ऑल्सो गिवन एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी। और एक है जो हमारा यंग्स मॉड्यूलस से आता है, डेल्टा एल बाय एल, delta L by L is also given as F by A into यंग्स मॉड्यूलस। तो यहाँ पे बेसिकली इन दोनों को इक्वेट कर दिया गया है, बस और कुछ नहीं किया हुआ है। बस यहाँ पे ये वाला एल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से, तो दिस इज द इफेक्ट ड्यू टू टेम्परेचर, ये जो है ये मेरा इफेक्ट ड्यू टू टेम्परेचर, एंड दिस इज माय इफेक्ट ड्यू टू माय फोर्स, जो मैंने कंप्रेशन फोर्स जो अप्लाई किया है। दोनों केस में डेल्टा डेल्टा चेंज नहीं हो रहा है, तो ये जो, तो दिस इज काउंटरिंग, दे आर काउंटरिंग ईच अदर्स इफेक्ट, सो बोथ ऑफ देम हैव टू बी इक्वल। तो यहाँ पे वही इक्वेट कर दिया गया है। so this is delta L, this is my delta L which is equal to this, just equated them, LL cut here, and you end up getting this. Obviously A is pi r square, and obviously coefficient of volume expansion is 3 times coefficient of linear expansion, मेरा alpha आ गया है, 3 times alpha is this. तो होपफुली दिस इज क्लियर, और प्लीज ये याद रखना, मैं इसे फिर से नहीं लिखूंगा। राइट, moving on to my next question. A string of length 60 centimeters, mass 6 grams, and area of cross square, and velocity of wave 90 meters per second. Given Young's modulus is this, find the extension in the string. इस क्वेश्चन में बस एक है, बाकी सब ठीक है। ये क्या है, ये क्या होगा? I've got two answers. Root over g by l. What exactly is velocity of wave? सिद्धार्थ, ये तुम्हें जाके पढ़ना होगा। Like 1 by 2 pi भी, तो रूट ओवर जी बाई एल, लाइक 1 बाई 2 पाई भी है, या फिर 2 पाई, सॉरी। अच्छा एक बात बताइए, पहले हम यंग्स पहले हम ये लिख लेते कि डेल्टा एल कितना होता है, उससे समझ में आ जाएगा। डेल्टा एल इज फोर्स, ऑब्वियसली स्ट्रिंग है, तो ऑब्वियसली रिस्टोरिंग फोर्स इज टेंशन बाय ए इंटू यंग्स मॉड्यूलस, और ऊपर में ऑब्वियसली मेरा एल आ जाएगा। तो मेरा 60 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है, यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है,
और क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो ये भी दिया हुआ है। तो द ओनली थिंग दैट इज मिसिंग इज दिस। एंड ऑब्वियसली एक और चीज दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 6 ग्राम, और ये भी दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली इसका इससे कुछ लेना देना है। यस रिटर्न। Yes, Yash is right. There was a formula V is equal to root of something. डिनोमिनेटर में मास पर यूनिट लेंथ होगा। तो आदित्य से 0.3 मिलीमीटर। तो मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे टेंशन खोजना है। महक से 0.3। तो वेव वेलोसिटी इज गिवन एज दिस। It is given as root over, in this case wave velocity इसलिए हो रहा है, टेंशन की वजह से हो रहा है, टेंशन बाय मास पर, and where mu is mass per unit length. This is nothing but m by l. This is nothing but m by mass per unit length, m by l. Yes. Ayush Singh says V is equal to root over F divided by M divided by L, which is V is equal to root over F by mass per unit length. Here जो फोर्स आ रहा है वो हमारे टेंशन की वजह से आ रहा है। So the force here in this case will be tension. Mu is equal to mass by length. इससे मेरा टेंशन आ जाएगा mu into v square. सिंपली जाके इसको इस फॉर्मूला में पुट कर देना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग 0.3 मिलीमीटर। सिंपली जो यंग मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू, जो भी मैंने पिछले पिछले वाले में लिखा हुआ था, तो यहाँ से मेरा टेंशन का वैल्यू आ गया। म्यू इज मास बाय लेंथ। मास दिया हुआ है कितना, 6 ग्राम कुछ दिया हुआ था शायद, और वहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ द वायर भी दिया हुआ है। तो म्यू हो जाएगा दैट मास डिवाइडेड बाय द लेंथ। यहाँ से मेरा टेंशन आ जाएगा, जाके उस इक्वेशन में पुट कर देना, तुम्हारा डेल्टा एल का वैल्यू आ जाए, एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग यू विल गेट 0.3 मिलीमीटर। Very good. I'll move on to my next question. A non-isotropic solid metal cube has coefficients of linear expansion this along the x-axis and 5.10 to the power minus 6 along y and z axis. If the coefficient of volume expansion of the solid is c into 10 to the power minus 6, then the value of c is इसका सिंपल, बहुत ही सिंपल आंसर है। Aritra says 60, Mehak says 60. तो इसका बहुत सिंपल मैं दिखा देता हूँ। इन दिस केस इट विल बी सिंपली coefficient of linear expansion along x-axis plus coefficient of linear expansion along y-axis plus coefficient of linear expansion along z-axis. तीनों को ऐड कर दोगे, that will be my coefficient of volume expansion, which you get as 16 to 10 to the power minus 6. So वो जो c जो वॉल्यूम एक्सपेंशन में दिया हुआ है उसका आंसर होगा तुम्हारा 60। अगर तुम्हें जानना है ये कैसे आता है, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, but some people would want to know. Obviously volume of a volume is given by uh, height into length into breadth. So L1 L2 L3 तीनों का अलग अलग मान लेता हूँ। वॉल्यूम इज L1 L2 into L3। अब मैं इसका लॉग ले लेता हूँ। L1 ln V is equal to ln L1
ln L2 प्लस ln L3. अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू dt. dt इज माय टेम्परेचर, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर. होपफुली डिफरेंशिएशन सबको आता होगा तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा. आई एम जस्ट डिफरेंशिएटिंग द एंटायर इक्वेशन बाय dt. तो ये आ जाएगा मेरा डिफरेंशिएशन के बाद. दिस कैन ऑल्सो बी, अब मैं dv को डेल्टा v से रिप्लेस कर दूंगा, dt को डेल्टा t से रिप्लेस कर दूंगा. मैंने ऑलरेडी ये बोला है फॉर लीनियर एक्सपेंशन डेल्टा L by L is equal to alpha delta t, where alpha is my coefficient of linear expansion. Similarly, delta V by V जो है change in volume by actual volume, this is equal to coefficient of volume expansion gamma into delta t. तो अगर तुम यहाँ पे देखते हो डेल्टा वी बाई वी, और अगर तुम इसको यहाँ ला देते हो इसको, दिस इज नथिंग बट गामा, coefficient of volume expansion. This is nothing but alpha along one direction, alpha along length या breadth जो भी मान लो, plus alpha along the other direction plus alpha 3. तो वहाँ तो ये वाला यहीं से आता है. It is simply coefficient of volume expansion is simply just add up the coefficient of linear expansions along height, length and breadth, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा. So I'll be moving on to my next question. A wire of length L is equal to 3 meters and area of cross section 10 to the power minus 3 centimeters square and breaking stress 48 into 10 to the power 7. It is attached with block of mass 10 kg. Find the maximum value of angular velocity with which this block can be moved in a circle with string fixed at one end. So wire of length L 3 meters, area of cross section 10 to the power minus 3 centimeter square. महक 40 होगा आंसर. Breaking stress 48 into 10 to the power 7 attached with block of mass 10 kg. Find the maximum possible value of angular velocity with which block can be moved in circle with string fixed at one end. So this is moving in a circle. So the tension in this wire should balance out, should be equal to the centripetal force. The centripetal force in this wire for circular movement is provided by the tension force. तो मैं दिखा देता हूँ. आंसर इज 4 rad per second. दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सर्कल. जी का कोई जिक्र नहीं किया हुआ है तो हॉरिजॉन्टली मान लेंगे.
तो ऐसा कुछ है और ये घूम रहा है. T by A is equal to my stress. Obviously, जो मेरा टेंशन फोर्स है, that is providing my tension force is providing my angular centripetal force. So T by A is equal to sigma. Stress is equal to tension by area. इतना तो ठीक है. Now this ten and my centripetal जो फोर्स है that is m omega square l. ये तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं होगी, I hope. E will be equal to m omega square l. Mehak says, oh shit, 4 not 40. चलो कोई बात नहीं. Finally solving these two equations, दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे तो तुम्हें ओमेगा इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकंड मिल जाएगा. सिग्मा ऑलरेडी दिया हुआ है, ब्रेकिंग स्ट्रेस. एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, आई थिंक 1 मिलीमीटर स्क्वायर की कुछ ऐसे दिया हुआ था. एल भी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है. तुम्हें ओमेगा स्क्वायर खोजना है. डिवाइड करोगे ऑब्वियसली टी और टी कट जाएगा. फाइनली यू एंड अप गेटिंग ओमेगा इज इक्वल टू 4 रेडियंस पर सेकंड. यस, कहाँ देखते रहते हो यार. ओमेगा आ गया 4 रैड पर सेकंड. Right. Ratio of energy density of two steel rods is 1:4. When same mass is suspended from the rods, if length of both rods is same, then ratio of diameter of rods will be. Meg just realized, अच्छा. I guess the Gaussian can only be solved by energy conversion. The satellite just revolves around the Earth is 2 hours. अच्छा, it just has to. ठीक है फिर. फिर Meg शायद. Okay. Hmm. Yash says is the Yash says 3. 1:2. यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी दिया हुआ है. अरित्रा से 2:1. एक आंसर 1:2 बोल रहा है, दूसरा आंसर 2:1 बोल रहा है. If the length of both rods is same, then the ratio of diameter of rods will be. इसका आंसर भी देख लेते हैं. Energy density is given by, now like Mehak, this is my energy density, half into stress into strain. ये मेरा एनर्जी डेंसिटी होता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. जो तुमने उस समय क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन पहले तुमने ये फॉर्मूला लगाया था, वो फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा क्योंकि यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी दिया हुआ है. तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ऑब्वियसली स्ट्रेन इज गिवन बाय स्ट्रेस बाय Young's modulus. So I finally end up getting half f square a square by y. Obviously a square is pi r square. तो अगर a के बदले अगर मैंने pi r square सब्स्टिट्यूट कर दिया और in this case pi d square सब्स्टिट्यूट कर दिया,
I substitute pi d square. Obviously same material same material है, तो y is constant. फोर्स भी दोनों पे एक ही लगाया गया है, हाफ तो कांस्टेंट है ही. तो दी ओनली थिंग जिस पे दैट एनर्जी डेंसिटी विल डिपेंड इज ऑन दिस डी. ऑब्वियसली ये a स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर. So the energy density is inversely proportional to d to the power 4. Aritra says option 4, 1 is to root 2. He just changed his answer. Achha. So d1 by du by d1. So energy density 1 by energy density 2. Energy densities are obviously inversely proportional. So, so I'm just saying du1 by du2 will be equal to d2 to the power 4 by d1 to the power 4. This ratio is already given in the question as 1 is to 4. So d1 by d2 will be 4 to the power 1 4, which is nothing but root 2 is to 1. So you will end up getting root 2 is to 1. Why Young's modulus है यश? So d1 by d2 is equal to root 2 is to 1.